Hello students, as you know we have finished our chapter 1 real numbers and today we are going to start second chapter polynomials. So let us start the second chapter polynomial. Dear students, we have already studied in class 9th about polynomials. So let us revise. What is a polynomial? A polynomial is an algebraic expression of variables and constants like this. An algebraic expression of the form like this. This is in variable x. A n x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus so on plus a2 x raised to power 2 plus a1 x plus a naught, where an is not equal to 0. डियर स्टूडेंट्स, कोई भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में होता है तो हम उसे कहते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन. हियर ए नॉट, a1, a2 up to an all are रियल नंबर्स. ये सब हमारे पास क्या है? real numbers. And the highest power of any polynomial is called the degree of that polynomial. As here n is the highest power, because it is here n, it is n minus 1 less than n. So n is here the highest power of the polynomial. So we can say this is the polynomial इन वेरिएबल x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमारा क्या है? x वेरिएबल है हमारा यहाँ पर. इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, where n is what? n is a non-negative integer, or we can call it as whole numbers. n is what? n is a non-negative integers. Non-negative integers means whole numbers. So it was the basic information about polynomial. What is polynomial? It is an algebraic expression of the form is called a polynomial in variable x of degree n. Now we will talk about linear polynomial. Linear polynomial. Linear polynomial means a polynomial having degree 1 is called a linear polynomial. For example, इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं पहले. ax plus b equal to b not equal to ax plus b, px इक्वल टू ax प्लस b. अगर हमारा पोलिनोमियल ax प्लस b के टाइप का है, यहां पर जो डिग्री है इसकी वो कितनी है? 1. डिग्री कितनी है हमारी यहां पर? 1. सो दिस इज लीनियर पोलिनोमियल. हम यहां पर कह सकते हैं वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर real numbers. a and b are real numbers. For example, 4x plus 2. 4x plus 2 is a linear polynomial because here the power of the variable, highest power of the variable is 1. So it is linear polynomial. Second one is
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक polynomial. So quadratic polynomial means a polynomial having degree 2. A polynomial having degree 2 is called a quadratic polynomial. We can write it as px as ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है 2. तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, एंड हियर a, b and c आर रियल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट we will have cubic polynomial. Cubic polynomials. So cubic polynomial means what? A polynomial having degree 3 is called cubic polynomial. We can write it in this form: ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0 and a, b, c, d all are real numbers. All are real numbers. इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 एंड सो ऑन. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किसी वेरिएबल में और उसकी एक डिग्री होती है जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की. इसी के बिहाफ पर हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स था कि लीनियर पॉलिनोमियल आ गया हैविंग डिग्री 1, क्वाड्रेटिक आ गया हमारे पास हैविंग डिग्री 2, क्यूबिक आ गया हमारे पास हैविंग डिग्री 3. अब हम बात कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की. Value of a polynomial. Value of a polynomial. तो डियर स्टूडेंट्स, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? इफ px is a polynomial in variable x and k is any real number, k is any real number, तो हमारे पास किसी गिवन पॉलिनोमियल px की, हमारे पास पॉलिनोमियल px दिया है यहां पर, तो हमारे पास किसी पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या होगी? The value of px will be what? The value obtained by putting px is the value obtained by putting x is equal to k. That is, हम कह सकते हैं कि p k the value of that polynomial, अगर हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, वो रियल नंबर, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है that will be the value of that polynomial. We can obtain it by putting x is equal to k. So if px is a polynomial in variable x and k is any real number, then the value of polynomial px is the value obtained by putting x is equal to k. Okay, so this will be the required value of polynomial. Okay students, इसके बाद हम बात कर लेते हैं
जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हो? रियल नंबर के, एनी रियल नंबर के any real number k is said to be zero of a polynomial if pk is equal to 0, if pk is equal to 0। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी रियल नंबर के क्या होगा, जीरो होगा किसी पॉलिनोमियल का। क्या होगा? जीरो होगा किसी गिवन पॉलिनोमियल का अगर उस रियल नंबर को x के जगह सब्स्टिट्यूट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 4x माइनस 2 हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है यहां पर। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस वाले पॉलिनोमियल में कोई पॉलिनोमियल है हमारा ये, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास x में। अगर हम इस पॉलिनोमियल के इसमें अगर क्या करते हैं, हम इस वाले पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं ताकि ये जीरो आ जाए। तो सपोज हम यहां पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर 1/2 हमने यहां पर x की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास क्या होगा, अब p 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कितना आता है 4 इंटू एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1/2, तो 1/2 माइनस 2, इस वाले 2 से ये 4 कैंसिल, यहाँ 2 आ गया, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x माइनस 2। वाई? बिकॉज इसके ये वैल्यू रखने पर हमारे पास इस रियल नंबर को पुट करने पर हमारे पास उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई 0। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमसे पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल अगर होता है तो हम क्या करते हैं, वी विल पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। हम उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको फर्दर, और वहां से जो x की वैल्यूज आएगी हमारे पास वो होगी रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकली द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर व्हाट। हमारे पास जो टॉपिक आ गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, ज्योमेट्रिकली द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स are the x coordinates of that polynomial. We can say geometrically जो मैं लिख रहा हूं यहां पर इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। geometrically the zeros of a polynomial are the x coordinate of the point, are the x coordinates
ऑफ द पॉइंट्स क्या होगा हमारा, वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारा, क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट का, वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px intersects the x-axis, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। ज्योमेट्रिकली जीरोज क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, ज्योमेट्रिकली द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, जीरोज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो यहां पर भी ये क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द x coordinates of the points where the graph of y is equal to px intersect the x axis। ओके, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिनोमियल को लेते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर अपना पॉलिनोमियल ले लिया px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, ये तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो हमारे पास था वो y इज इक्वल टू px था, तो यहां पर हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू px कितना बन जाएगा, px की वैल्यू तो 2x प्लस 3 दी है यहां पर, 2x प्लस 3। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं, यहां पर अपना ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही एक टेबल बनाते हैं, जैसे हमने क्लास 9th में सीखा था। वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू प्लॉट द ग्राफ x y। x की वैल्यू हमने यहां पर क्या पुट कर दी, 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 2 इंटू 0 ये सब 0 बन गया। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, x 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमने यहां पर 1 पुट कर दी, सपोज 2 इंटू 1 2 प्लस 3 कितना बन गया 5। तो अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ये हमारी आ गई x एक्सिस, ये हमारी आ गई y एक्सिस, ये हमारा आ गया ओरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन, हमने क्लास 9th में पढ़ा था इसके बारे में। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है जब x की वैल्यू 0 तो y कितना है 3। x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर 3। तो पॉइंट हमें मिल गया 0 3 0,3, एक पॉइंट मिल गया हमें। सेकेंड हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो पॉइंट आ गया 1,5। तो 1 हमारा ये चला गया और 5 हमारा ये यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है 1 5 वो हमें यहाँ मिल गया। अब क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस। इसको हमने ज्वाइन कर दिया और ये ग्राफ था हमारा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमने यहां पर देखा कि इस ग्राफ ने x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट किया है, इस वाले पॉइंट पर, और ये पॉइंट हमारा क्या है -3/2, बिकॉज -1.5 आएगा तो इसको लिख सकते हैं -3/2, 0, क्योंकि x एक्सिस पर भी y की वैल्यू क्या होती है 0। तो -3/2, 0। तो हमारा जो मीनिंग था ज्योमेट्रिकली, हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिकली द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो यहां पर कहां इंटरसेक्ट किया है, सिर्फ एक पॉइंट पर किया है, यहां पर किया है।
तो यहाँ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा, यहाँ का जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या है, वो हमारा आ गया रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो वी कैन से देयरफॉर ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना आ गया यहाँ पर, और पॉलिनोमियल पी एक्स कितना आ गया इज इक्वल टू कितना है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और वो है हमारा -3/2, दैट इज -3/2। चेक भी कर सकते हैं हम, इसमें पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, पी एक्स मस्ट बी जीरो, यही कहा था हमने कि पी एक्स जीरो होना चाहिए। तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है, -3 प्लस 3 कितना आ गया रिजल्ट 0। तो यहां पर -3/2 क्या बन गया हमारा, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और ये हमने कैसे निकाला कि जितने पॉइंट्स पर किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस। तो यहां पर 1 पॉइंट पे किया है, तो हमारे पास ये था लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 जीरो। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है 2, डिग्री क्या होती है 2। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो यहां पर क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा हमारे पास, द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। ओके, तो यहां पर इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स where the graph of px intersect the x-axis will be at most 2। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरो जिस केस में होगी, नंबर ऑफ जीरोज भी यहां पर क्या होगी एट मोस्ट 2, मतलब कहने का क्या हुआ कि अधिक से अधिक 2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बिकॉज जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक पैराबोला फॉर्म में आएगा, और वो पैराबोला क्या हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, और ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, मीन्स कि ये इसको टच ही ना करे, हमारे एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अब अगर हम इन जनरल में बात करें इस चीज की, सिमिलरली इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इट मे बी एट मोस्ट 3, नंबर ऑफ जीरोज इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल मे बी एट मोस्ट 3। इन जनरल अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है, in general a polynomial px of degree n has at most n zeros। कितने जीरोज हो सकते हैं इसमें, n zeros, and the graph of y is equal to px will intersect the x-axis at most n points। ओके, एट मोस्ट n पॉइंट्स। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो कोई पॉलिनोमियल px से हैविंग डिग्री n, डिग्री कितनी है इसकी
n, तो इसके एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं? n जीरोज, एटमोस्ट n जीरोज हो सकते हैं। और जो ग्राफ होगा हमारा उस पॉलिनोमियल का y इक्वल टू पी एक्स, इट विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एटमोस्ट n पॉइंट्स। जितने पॉइंट्स पर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। इज दैट क्लियर? सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया एक। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.1 में देखना है आपने। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। जिसमें से मैं एक दो पार्ट कर देता हूं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, ओनली वन क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। 6 पार्ट है इसके। जैसे फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? कुछ ऐसा ग्राफ दिया है हमारे पास, ओके, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन आ गया, ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया है उस पॉलिनोमियल का वो क्या दिया है? एक स्ट्रेट लाइन दिया है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? द नंबर ऑफ जीरोज। अब कैसे निकालेंगे? इज हाउ मच? यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? देखो, एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ क्या है? कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर नहीं कर रहा है, 0 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं यहां पर? नंबर ऑफ जीरोज इज 0 एज द ग्राफ ऑफ y is equal to px do not intersect the x axis। ओके, रीजन भी मैंने लिख दिया इसका कि नंबर ऑफ जीरोज यहां कितने होंगे? 0 होंगे एज द ग्राफ ऑफ y is equal to px do not intersect the x axis at any point। ओके, एक और पार्ट लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट बहुत सिंपल दिया है। y डैश x डैश o। इसका जो ग्राफ दिया है कुछ इस ढंग से दिया है। तो यहां पर बहुत क्लियर है कि x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ? ओनली 1 पॉइंट पर। तो हम लिख सकते हैं यहां पर द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ intersects the x axis at 1 point only, at 1 point only। okay, so dear students, remaining parts you will do by yourself, and if you have any doubt you can ask on WhatsApp। hope so कि आपको आज का ये लेक्चर सब समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है you can ask me on WhatsApp। that's all।